Hello and a very good morning to you. You're watching Times Now Live. I'm Pratibha. First up, let's get you started with the top headlines this morning. In fact, let's get you details of the biggest story of the day, the murder of the 19-year-old Ankita Bhandari, who worked as a receptionist in Uttarakhand's resort, has sparked outrage across the country. The BJP also took action against the party leader Vinod Arya after his son was arrested in connection with the case. The post-mortem report has revealed that Ankita Bhandari's cause of death was asphyxia due to drowning. Now, the report also adds that there were findings of injuries on the body before the death that suggest a blunt force trauma. These are the details that have been coming in. Remember, yesterday the bulldozers also rolled in, but now more gory details of how things unfolded now remaining. Now, reaction also coming in from the family members who have refused to cremate the body. The family members are seeking the forensic report, saying the mortal remains will not be cremated until the formalities are completed, until they are given a forensic report. Remember, the family members have been demanding justice. This incident has caused outrage across Uttarakhand, with several people even hitting the streets demanding justice for Ankita. And now, with more and more murky details coming in, now the family members have said that they will not cremate the body until they get the forensic report. मैं चाहता हूँ कि जो मेरी लड़की के खिलाफ जो इन्होंने मर्डर किया है तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलके वो फाइनल रिपोर्ट मुझे मिल जाए, शारीरिक तौर पर शारीरिक हो जाए, और जो दोषी आरोपित हैं तीन जो उनके खिलाफ तुरंत फास्ट ट्रैक जो है कार्रवाई इनको फांसी दी जाए। जिस ढंग से इन्होंने मेरे लड़के के साथ दुर्व्यवहार किया, उसके बाद मार पीट के इसको फिर उसमें गिराया, क्या बोलते हैं, नहर में गिराया, तो मुझे पूरी शंका है कि इन्होंने मेरे साथ। अंत्येष्टि को लेकर क्या करेंगे? हाँ, अंत्येष्टि में बोला मैं कि तभी को जब पोस्टमार्टम रिकॉर्ड फाइनल रिपोर्ट नहीं आई मेरे। बस हमारी तो यही मांग है कि जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम आगे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, जब तक रिपोर्ट फाइनल नहीं हो जाती है। अभी प्रोविजनल रिपोर्ट निकल के आ रही है, उसमें देखा तो है कि उसे मारा पीटा गया, उसके बाद उसको नदी में डाल दिया गया है। तो जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम रुके हुए हैं उस चीज़ की। Abhishek is joining us for more details on this. Abhishek, this is an incident that has caused outrage across Uttarakhand despite the action that the police officials have now taken. The details of the case are gory, which is why the family members have now even refused to cremate the body, saying until they get a forensic report, until there's clarity on what exactly happened, they are not going to go ahead. देखिए, जब से पीएम रिपोर्ट आई है, ये जो पीएम रिपोर्ट पे उन्हें ज्यादा कुछ भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही जो असली खुलासे हैं, जो उनकी बेटी के साथ जैसा उनकी आशंका है कि दुर्व्यवहार किया गया है, वो सब चीजें खुलकर जब तक सामने नहीं आ जाती या ये क्लैरिटी नहीं हो जाती कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि अभी इन लोगों के दिमाग में जो शंका चल रही है वो यही चल रही है, जिस तरह की जो चैट में इनकी लड़की ने, जो अंकिता थी, उन्होंने बात स्वीकारी थी कि उन्हें मजबूर किया जा रहा है और उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन लोगों ने ये डिमांड रखी है, जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट से दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता तब तक वो अपनी बेटी अंकिता का दाह संस्कार नहीं करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर शासन प्रशासन की टीम उन्हें मनाने में जुटी हुई है। लगातार पेशकश की जा रही है, ऐसी कोई धारा नहीं है जो नहीं लगाई जाएगी। उन्हें आश्वासन भी दिए जा रहे हैं, लेकिन वो अभी भी अपनी मांग पर अडिग हैं और उनका सीधे रूप से कहना है कि जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं तब तक कोई दाह संस्कार नहीं होगा। Okay, all right. Abhishek बने रहिए हमारे साथ। फैमिली मेंबर्स से भी हमने बात की, and the family members have refused to cremate her body. Like we mentioned, the outrage continues. They're going to wait till the final forensic report is out. Remember, the post-mortem that has come out, the report that has come out suggests that there has been a blunt force injury, but there are still details awaited on how exactly she died. Was it injuries before the death, or because she was pushed into the water as she died of drowning?
मेरा तो यही कहना है कि ऐसे लोगों को फांसी पे चढ़ाना चाहिए, जल्द से जल्द इसका वो होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होने से पता नहीं कितने बच्चियों के साथ में ऐसा वो करेंगे लोग। इसलिए जो है मैं तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। बहुत गलत हुआ, बहुत। हम तो कहते हैं जल्द से जल्दी फांसी उनको, या तो आग जला, मिट्टी तेल डाल के आग लगा दो उन पे, या तो फांसी, और जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। 1-2 दिन के अंदर ऐसे नहीं, महीनों लगा दो जल्दी। बस हम सबकी यही मांग है, हमारी लड़की की बात है, और दूसरे और किसी की लड़की की भी होगी। अब माँ बाप कैसे करके पढ़ा रहे लिखा रहे बच्चों को, ये थोड़ी कि मतलब सुरक्षित ना है वो। शासन द्वारा फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए इन पे, जो भी अपराधी हैं कानून के अंतर्गत जो भी होता है, मुझे पता है कानून हमारा ठोस भी है, लेकिन गौर करने की जरूरत है शासन को और न्यायालय जी को, माननीय न्यायालय को भी इस पे, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक हो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट तक सभी अदालतों को कि इस मामले में बहुत ही सख्ती से संज्ञान ले, ये घिनौनी कांड करने के फैसले के लिए। Now, an SIT has been formed with a probe currently underway. The case will also be fast-tracked. So, these are the details coming in. The probe is already on. The SIT in charge has informed that the case will be fast-tracked. We've had a conversation with the DIG of the SIT team that is in charge of the probe that's currently underway. अभी तक हमारा विवेचना में हमें कितना हमने प्रोसीड किया है उसमें लगा है उस लड़की के साथ कुछ तो मतलब घटना हुआ है। सो हमारा प्रयास पूरा रहेगा, हम कितना भी एविडेंस है सभी हम कोर्ट के सामने पुटअप करेंगे, कितना भी विटनेसेस है उनको हम कोर्ट के सामने ले आएंगे। सो हमारा पूरा प्रयास रहेगा 100% कितना भी अक्यूज्ड है इसमें, सो उनको बिल्कुल मैक्सिमम पनिशमेंट का इंश्योर करने के लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। ये मुकदमा है, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी इसको लेके जाएंगे सो दैट उनको जल्दी भी न्याय मिले। अभी रिसोर्ट के बारे में बैकग्राउंड क्या है, कैसे उसको लाइसेंस मिला है, कैसे रन करते हैं, वो पूरा बैकग्राउंड को हम एनालिसिस कर रहे हैं, फिर आगे उसी सब से आगे बढ़ेंगे। उनका जो कुछ शंका है या डाउट है कि भाई कोई खिलवाड़ ना हो जाए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो फाइनल रिपोर्ट आएगी, तो ऑल उनको ये समझाया है और वो इस बात को समझ भी रहे हैं कि रिपोर्ट में 2-3 दिन का समय लग जाता है जो भी सैंपल्स वगैरह जाते हैं। दूसरा उनके द्वारा 1-2 बजे तक के लिए कहा गया कि कुछ ऐसा पुष्टि अगर हो पाए या कोई रिपोर्ट मिल पाए जिससे इनको थोड़ा और सांत्वना मिले या फिर आश्वासन हो, तो उसका वेट करा जा रहा है। And let's now